बजट 2025-2026 को लेकर सीएम ओमर अब्दुल्ला की इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगभग कोई पौने 2 घंटे बोलने के बाद का नतीजा बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ। उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है, जो मुझे इसका ख्याल आया कि कम से कम कश्मीर में ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने फाइनेंस मिनिस्टर की सूरत कोशिश हमारी तरफ से हुई कि बजट वो पेश हो जिससे लोगों को फायदा मिले, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आए और जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर जो है वो और तेजी से आगे बढ़े। ये हमारा कभी दावा नहीं था कि सारा कुछ एक ही बजट में होगा। न हमारा ये दावा था कि हमारे इलेक्शन में किए हुए वादे सारे एक ही बजट में पूरे होंगे। तो इसलिए मैं यहां बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ अब हो गया। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हमने बुनियाद रखी। बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर जो दायरा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो मजबूत होगा। अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो आप उन बुनियादों पे कायम करने की कोशिश करोगे वो रहेगा नहीं। और कहीं पे भी, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जब ख्याल रखना है तो सबसे पहले ख्याल उनका रखा जाता है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए सोच समझ के इस बजट में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जिन वेलफेयर मेजर्स का आज ऐलान हुआ, वो जम्मू कश्मीर की सबसे गरीब जो तबका है उनके लिए ये बुनियाद है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे और हमारी माली हालत बेहतर होती जाएगी, जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हमें लेने होंगे उनका दायरा जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी जगह मुतमैन हूं कि जिन हालात में आज जम्मू कश्मीर है, फाइनेंशियली और एक यूटी की सूरत में, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। और मेरी और मेरे साथियों की, हमारी हुकूमत की लगातार कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर फायदा हासिल हो। तो ये कहते हुए मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन साहब से कह दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। Thank you, sir. Before opening the floor for the questions, I request all the media persons to kindly introduce yourself and the organization you belong to before asking a question. Also, please keep your question brief and kindly limit yourself to one question. So, now I open the floor for questions. So, from my side. This is Shubhasweta from Kashmir. My question is related to what you have made in budget. You are putting more premium on crafts economy
making efforts in the form of industrial units. Sorry, you'll have to speak a little slowly. I didn't hear you. You're putting more emphasis on. So you are putting more premium on what? Agri economy or crops economy are creating efforts in the form of industrial units in your labor. What is your focus? Agri economy. Oh, okay. No, our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides: the primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. Question from there. I am Anil from PTI. Also, you have showcased a lot more programs in your budget. One important factor that we generally talk about is agriculture or tourism-based economy of India. But never has the focus gone to the hydropower, which is the biggest economy in terms of, in fact, 10 to 20,000 crores economy for India. You have spelled a new hydropower policy for this. Can you specific about the projects, particularly private projects? Actually, in my budget speech, I've said that we're formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the Power Department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well, so that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. Hello. वेल मैं बजट एक्ट लास्ट पढ़ रहा था, इसको देख करके मुझे लगा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 19% है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वहाँ पर ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? मे बी या सोशल सिक्योरिटी। एक सवाल ये मेरा। दूसरा, आपका जो सैलरी कंपोनेंट है, वो इस साल कम रखा गया और पेंशन कंपोनेंट भी कम। जब सैलरी कंपोनेंट आप कम रखते हैं, इसका मतलब है कि आप रोजगार सरकारी नौकरी इस साल नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और वजह एक सवाल मैं लास्ट में आपसे करना चाहूंगा, लास्ट में एक मौका मुझे दे दीजिए। चलिए, अब पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा आरई है वो 27,544 है। जो हमारा 25-26 का बीई है बजटेड, ये है 32,607। तो इसको बढ़ाने की बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है
वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट पर डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है इस बार। इस बार जो सैलरी कंपोनेंट है वो ने कहा ना सैलरी कंपोनेंट कम हो गया है। तो पिछले साल था 27,930 करोड़, अभी आपने जो प्रपोज किया है 23,896 करोड़ है। इट मीन्स कि आप रोजगार नहीं देने वाले हैं या असामियां जो खाली है वो भी भरी। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना। पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी। इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है। एम्प्लॉयज की तादाद कम नहीं हुई, एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, रोहित शर्मा टेकन चैनल पर डेली वेजेस के लिए पूछना चाहूँगा। उनका बड़ा लंबे समय से इंतजार था, दरअसल जब यहाँ से बाहर जाएंगे वो हमें पूछेंगे जब कल उनके प्रोटेस्ट में उनकी कवरेज करेंगे एसपी को लेकर। पिछले दिनों आपके एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट डाली थी जिसको क्लैरिफिकेशन दी गई, लेकिन सवाल उनका जो है वो आप तक पहुँचाने के लिए वो हमें मिलेशन चूज करते हैं। क्या कुछ उनके लिए निकल कर आ रहा है? सर एडिशन करूंगा ए वाइज के लिए जो आपने बजट लाया, नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, पर डोंट यू थिंक सर कि बीपीएस का जो पैरामीटर सेट किया गया है उनको एक बार फिर से सर्वे करने की जरूरत है ताकि जो एपीएस में आज की डेट में फॉल कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जहाँ तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए एक पॉलिसी हमें बनानी हो। पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है, कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं। जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जहां तक आपने एवाई और बीपीएल वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। तो इस बजट में सोच समझ के हमने एवाई को जो है मदद की। अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे उससे हमारी कमाई बढ़ेगी, और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी। उसमें फिर हम जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट वन बैक। You can have some मेरा छोटे छोटे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि क्या सरकार एनपीएस एम्प्लॉइज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है रिस्टोर करेगी? नंबर एक। नंबर दो ये है कि आपने अपने बजट में काफी वेलफेयर मेजर भी अनाउंस किए थे, क्या जो एक्रेडिट और नॉन एक्रेडिट जर्नलिस्ट है उनके लिए भी कोई वेलफेयर मेजर अनाउंस करेगी सरकार, जस्ट लाइक पेंशन, इंश्योरेंस इत्यादि इत्यादि? न्यू पेंशन स्कीम का जो पुराने वाले हैं वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहाँ तक जर्नलिस्ट के पेंशन वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूँ हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए कितना चाहते हो। फिलहाल प्रेस क्लब की मैंने बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे।
What's up, good evening? I'm Imran from Economic Times. What's up, there's this fare rebate for the women, which is Euro fare for the women. So we see that the public transport, especially the SRTC, is in shambles, especially when we talk about districts, inter-district connectivity. So will it reach to the grassroots really, number one? And number two, the opposition has termed this budget as something which is love letter to the BJP. Some have called it a deception because of the broken promises of the election. How do you respond to that? And lastly, also I'll say you started your budget speech on a very pessimist Persian proverb, which is often used when the situation is irreparable. So, do you still consider what you told in Delhi recently that the current system is a recipe for disaster? Did you see that challenge while preparing the budget? Yeah, you had so many questions that I don't know where to start. One, SRTC daily ridership is more than 20,000. So it's not as if SRTC buses are going empty. And it is our endeavor to augment that fleet and strengthen SRTC's network. So obviously, ladies, when they're able to travel free, both within the e-bus network and SRTC, we believe that it will benefit them greatly. I don't expect anything but criticism of the budget from the opposition, because that's why they're called opposition. If they were anything else, they would be in government. I mean, it would be difficult for you to find me an example where an opposition has come out from Parliament or the Assembly and praised the budget. Therefore, that's not, for me, any sort of criteria. I believe that we have presented a budget that is people-friendly. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. To that extent, if there are people of Jammu and Kashmir who voted for the BJP, then it's a love letter to them as well. But it's also a love letter to the people who voted for NC, voted for Congress, that voted for PDP, and a love letter to the people of Jammu and Kashmir who didn't vote at all. So let's not be sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Now, on the third thing, I think that proverb was not an expression of helplessness, because there is a balm. If that proverb had been about the absence of a balm at all, then it would have been helpless. There is a balm, but there are many wounds, which is a fact. I mean, if you go by the numbers that Santosh put in front of you, if you go by the numbers that I put in front of you in the assembly, the fact is that the problems are many, but the resources are limited. And that's why this budget was an exercise in trying to do the maximum good with the least deployment of resources. As our resource position improves, as we move more towards a self-sufficient Jammu and Kashmir, obviously that will change. Now, the question that you asked me, I still maintain that a UT with assembly is by far the worst form of government in the country. I have no hesitation in saying this. I've said this before, I'll say it again. There should only be two systems in this country. Either you have a UT without assembly, or you have a state. Because please remember, union territories were envisaged as territories that were too small to be states. That criteria does not apply to JNK. So, that's it. Okay. अंकित बाटू TV9 बागपत से आज बजट पेश हुआ। आपने एजुकेशन और टूरिज्म को लेकर कई बातें की। सरकार का एक आंकड़ा है, इसमें कहा जाता है कि टूरिज्म जो पिछले 2 साल से है 4 करोड़ लोग जो है वो जम्मू कश्मीर आए थे टूरिज्म के हवाले से। मैं थोड़ा सा इसमें इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमने गिनने का तरीका थोड़ा बदल दिया। अब हम लोगों को नहीं गिनते हैं, हम उनके विजिट्स को गिनते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप आए, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, कितने? एक बेटी, ठीक है। आप 3 लोग हैं। आप श्रीनगर छुट्टी के लिए गए, वो 3 विजिट हो गए। आप श्रीनगर से गुलमर्ग गए, वो 3 और हो गए। आप गुलमर्ग से सोनमर्ग गए, 3 और। आप सोनमर्ग से पहलगाम गए, 3 और। तब जाके हम
उस नंबर पे आ जाते हैं जो नंबर हमने आपको दिया। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि इतने लोग आए, मैंने कहा इतने विजिट्स हुए। विजिट्स हम डेस्टिनेशन वाइज गिनते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म फिगर्स का भी इसी तरह जो है काउंट होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ 4 करोड़ लोग आए, हम ये कह रहे हैं कि इतने विजिट्स हुए, इतने साइट्स पे जो है लोग आए। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट आ भी रहे हैं, जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी में आ रहे हैं, लेकिन जैसे रजौरी पुंछ है, पीर पंचाल इलाका है, आने वाले समय में गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान करने वाली है ताकि टूरिज्म के हवाले से इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोग टूरिस्ट आ सके। दूसरा अहम सवाल ये है कि जब आपका मैनिफेस्टो आया उसमें कहा गया कि 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। आपकी सरकार बनी, कई बार सवाल भी उठे कि 200 यूनिट कब फ्री मिलेंगे। आज बजट पेश किया गया, आपने बताया कि 200 यूनिट दिए गए हैं AAY कैटेगरी को। क्या जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है उनके लिए आपने ओपन फॉर ऑल यूनिट दिया 200 यूनिट? जहां तक पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। फिलहाल जहां सबसे ज्यादा जरूरत है पहले तो वहां देना चाहिए, आगे जाके। और वैसे भी अगर आप देखें, हम 200 यूनिट से कहीं गुना ज्यादा बिजली जो है मुफ्त दे रहे हैं। अगर आप देखें हम कितने रुपए की बिजली खरीदते हैं और कितना हम हासिल करते हैं, तो वो 200 यूनिट से कहीं गुना ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद हम आज भी अपनी जगह कायम हैं कि सबसे ज्यादा जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें जो है इस 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली का फायदा जो है हम पहुंचाएंगे। शुरुआत हमने AAY से की है, आगे जाके जैसे जैसे हमारी माली हालत बेहतर होगी इसका दायरा जो है और बढ़ा दिया जाएगा। जहां तक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, मैं भी मानता हूं कि जम्मू में टूरिज्म का दायरा जो है वो बढ़ाना होगा। इसके लिए पहले जिन इलाकों के हवाले से आपने बात की, वहां की कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी, उन खूबसूरत इलाकों तक हमें सही सड़क पहुंचाने होंगे। और फिर जो हमारा स्प्रेड प्रोग्राम टूरिज्म का जो है बढ़ाने का, उसके तहत कुछ नए डेस्टिनेशन जम्मू के जो हैं उसमें शामिल किए जाएंगे। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम समीक्षा है, यूनिवर्सिटी में फाइनेंस। सर पहले तो आपका शुक्रिया है कि आज जो महिलाओं के लिए ई-बसेस की आज आपने फ्री सुविधा निकाली है, उसके लिए आपका शुक्रिया। मेरा सवाल रहेगा विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर। सर आपके मैनिफेस्टो में तीसरा पॉइंट था कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जो है वो घाटी में वापस लाया जाएगा, लेकिन अगर आज बजट की बात करें तो उसमें जो है विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है कोई भी बात नहीं है। हमने उनके रहन के लिए जो है बजट में जिक्र किया है कि उनकी बेहतरी और जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है उसको कंप्लीट करने का जो प्रोजेक्ट है वो हम कर लेंगे। जहां तक वापस ले जाने वाली बात है उसका बजट से कम और हालात से ज्यादा लेना देना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में से कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं भागे क्योंकि उनकी माली हालत खराब थी, वो इसलिए गए क्योंकि उनके जान को खतरा था। जब तक हम उस खतरे को नहीं हटाते हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से वापस जाएंगे। इसलिए मिलके फिलहाल यूटी में ये जिम्मेदारी हमारी साझा है, LG साहब की भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की। मिलके हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में उस तरह के हालात कायम किए जाएं जिससे कि कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए वो अपनी मर्जी से वापस जा सके। Thank you, Honorable Chief Minister Saab, for the opportunity. Umar Abdullah Saab, in your budget speech, you expressed your gratitude to the Prime Minister, Home Minister, and the Finance Minister. You held many discussions with them before you presented the budget. Were you able to extract enough from them when it came to the fund, or you feel that you could have done more? Question number one. And my second. Go ahead. My second question is something very important about the state. During those meetings, you also discussed the restoration of statehood. And after that, you spoke to the media. You said that you did raise that issue. Umar Saab, I just want to know that was there any solid assurance given to you about the time, any time frame was given for the restoration of statehood? We're working on a time frame, but I don't think it would be appropriate for me to talk about it at this point in time. Needless to say, it is work in progress.
That is the answer to the second part of your question. As to the first part of the question, let's be honest. I can always do with more money. No matter how much Government of India gives Jammu and Kashmir, I can always find ways of spending more. But I'm extremely grateful for what we have. So I don't want to in any way sound ungrateful by saying कि ना हमें और मिलना चाहिए था. जितना मिलेगा हम खर्च करेंगे, लेकिन जितना अभी तक मिला है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. एक क्वेश्चन आते हैं. गुड इवनिंग मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मैं विशाल यूनिवर्सिटी से. सर मेरे दो सवाल हैं. पहला स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है. स्पोर्ट्स सेक्टर की सर आपने बात की है. सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आज आपने कहा कि 2 नई स्विमिंग पूल हैं जम्मू कश्मीर में जगह बनाए हुए हैं. पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा स्विमिंग पूल है जिसकी रिवैम्पिंग हो रही है MS स्टेडियम में, क्या वो इसी बजाय में कंप्लीट होगा? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कोचेस की जो है स्पेशलाइज ट्रेनिंग की बात कही है आज, टू एनहांस देयर कैपेबिलिटीज. सर मुझे उम्मीद है कि जब ये बजट बनाया गया होगा तो जरूर इसमें स्टडी की गई होगी कि आने वाले दिनों में साल 26-27 के दौरान जो हमारे 2 डिपार्टमेंट हैं उनमें से एक डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स काउंसिल जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, अधिकतर जो है स्टाफ इसका रिटायर हो जाएगा और वो आधा रह जाएगा. क्या ये आने वाले दिनों में आपकी सरकार का कंसिडरेशन रहेगा कि उस डिपार्टमेंट को भी यूथ सर्विस डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करके इस सेक्टर को और मजबूत किया जाए? अब दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूं. फिलहाल मर्जर का कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं आया, न इस पे कोई बात हुई है, और ये मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं कि इस पे हमें सोचना भी चाहिए. फिलहाल इस पे कोई ऐसी बात नहीं आई है जिस पे कि हम सोचें कि यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जो है मर्ज करना है. जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हम जैसे मैंने बजट स्पीच के दौरान कहा, हम एक नया जाल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बिछाने पर वादाबंद है. उसमें से 2 चीज़ों का आपने जिक्र किया, एक श्रीनगर और जम्मू के लिए नए इंटरनेशनल क्वालिटी के स्विमिंग पूल वो कायम किए जाएंगे, और आपने पूछा कि क्या जम्मू वाला जो है टाइम पे कंप्लीट होगा. बिल्कुल होगा. सर बजट से हटके मैं रहूँ और एक सवाल है कि आपको नॉमिनेट किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा अगेंस्ट ओबेसिटी कैंपेन में. सर जम्मू कश्मीर में बतौर चीफ मिनिस्टर आप इस कैंपेन को अग्रेसिवली किस तरह आगे लेकर जाएंगे? मैं वही डिप्टी सीएम साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं खुद खाता नहीं हूं, तो मैं दूसरों को भी शायद ये सबक देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ही कम खाओ. नहीं, हम इसमें हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, मिसाल पेश कर सकते हैं. हम अपने आप में मतलब एक मिसाल बन के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप मेरी उम्र में 55 साल की उम्र में मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूं. तो फिर 20-22 साल के जो लोग हैं उन्हें क्या, उनके पास क्या बहाना है? अगर कि मेडिकली वो फिट हैं, वजन वो कम क्यों नहीं रख पाते? तो चीजें हैं, लेकिन मैं कोई मतलब बड़ा डंडोरा पीट के लोगों के पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ. सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि एक मिसाल कायम करूँ जिसको ज्यादातर लोग फॉलो कर पाए तो अच्छी बात होगी. और सबसे पहले तो मैं अपने मिनिस्ट्री साथियों को कहूंगा कि वो मेरे साथ 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें, फिर बाकी जम्मू कश्मीर को दौड़वा दूंगा मैं. मैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मैं दौड़ रहा हूँ. I am Arun Sharma from Indian Express. Arun Sharma from Indian Express. I have a small question. You, despite using limited resources, you have proposed to launch about the welfare schemes. No, your budget is it a zero deficit budget or a deficit budget? Jammu and Kashmir operates in a deficit. And I made this point very clear in the opening part of my budget speech, where I outlined how much we earn and how much we spend. It is a fact that we are very heavily deficit as far as our fund position is concerned. That said, we do generate
some amount of revenue of our own that allows us to focus on some social welfare streams. And that's how we've been enabled with this budget, which is why I make the point that, look, this budget doesn't achieve everything that we set out to do, but it is a start. And as over the next 5 years our economic position improves, we will tackle all the promises that we've made. आपने यूपी का पहला बजट पेश किया, इसके लिए आपको मुबारक है। और अगर आप पोस्ट इलेक्शन के बयान देते जाए तो आपने कहा था इलेक्शन जो है नेशन बेस में नहीं जाएगी, गवर्नमेंट बेस पे। और आज का बजट जो है आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपने 3 ऐसे मंत्री जो है जम्मू से जुड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को लगता था कि जम्मू का जो डिस्ट्रिक्ट हो तो पूरा होगा, जिसको आपने भी अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पर रखा, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने भी रखा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि उसकी तरफ से महाराजा साहब के प्रति ऐसा कमेंट आया है जिसमें हर जगह जो है जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे। इसके साथ साथ महाराजा डॉक्टर कलीम सिंह की तरफ से भी किया गया। आप कैसे देखते हैं इसमें कॉन्फ्लिक्टेड और कंट्राडिक्टरी जो हिस्ट्री है उसकी वजह से? कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ना, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो है, और इस पे खुल के जो है कल हाउस में जो डिस्कशन के दौरान बातें हुई, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ कहने की जरूरत है। असेंबली के अंदर जो बातें हुई वो रिकॉर्ड पे हैं, उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इनको माइक नहीं, कोई नहीं, आप माइक ले लीजिए क्योंकि आपके पीछे जो बैठे हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव की तिथियों में बहुत बड़ी गलती की थी कि कुछ ऐसी तारीखें दे दी जब 2 जो धर्म होते हैं उनकी डेट थी, उन्होंने उसको वापस किया। कल जब मैंने आपको लगातार देख रहा हूं, कल मैं आपको सजदा करता हूं जिस तरह आपने एक बूंद पानी भी नहीं दिया, क्योंकि मुकद्दस महीना है और आपने रमजान में रोजा रखा है। शायद आप पहले वित्त मंत्री चीफ मिनिस्टर हैं जो पूरा देश को मैंने देखा, वो 4-4 गिलास पानी पीते थे। बहुत अच्छा किया आपने सर, इसलिए पीने का बहुत दिल किया ना, बिल्कुल नहीं पाया। एंड मुख्यमंत्री जी, दूसरी बात यह है, यहाँ फिर गलती थी, ये एक मुकद्दस महीना है, हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो देश के बहुसंख्यक हैं वो जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक, राइट सर? मगर बावजूद इसके सबसे ज्यादा अगर रमजान का पूरे देश में विश्व में मनाया जाता है, सबसे ज्यादा संख्या अगर भारत में इसे मुस्लिम साइड की है तो जम्मू कश्मीर से। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी, या ये बजट का आगे पीछे देर भी हो सकता था, आपको फिर कल जवाब देना। एक मेरी और चीज है, इसी स्थान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बहुत बात हुई, भाजपा ने बहुत कहा 2 क्लास के ऊपर जो डेली वेजर है, तो महामहिम उपराज्यपाल ने यहीं पर कहा था सर कि हमारे पास बिहार से ज्यादा डेली वेजर है, हम इनको परमानेंट नहीं कर सकते। इट्स ऑन द रिकॉर्ड सर। तो इसमें भी क्योंकि अब आप मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय सरकार है, निर्वाचित हुए हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड के भी बहुत पीछे बात हुई थी सर। बॉलीवुड यानी पंजाब का आना चाहता है, साउथ वाले आना चाहते हैं सर, और वादी कश्मीर के साथ, और वो निराश हुए हैं आपके पास है। आप मुंबई गए थे, शायद आपको करूँ, मेरी इतनी ही जानकारी चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था सर? पहला तो था कि वो पहला मैं जानता हूँ, मैं दूसरे की बात। दूसरा ये था सर कि इस वक्त बहुत मुकद्दस दिन चल रहे हैं। नहीं, वो तो मैं ये जो आपने वो फिल्म के बारे में जो कहा, कोई निराश है, कौन है? सर यहाँ पर जो पिछली हमारे महामहिम ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ लाएंगे, यहाँ शूटिंग होगी, मगर सर सब निराश गए। जैसे इंडस्ट्री में सिवाय बाबाए कौम के सिंगल विंडो में काम हुआ, तो उसके बाद इंडस्ट्री में सिंगल विंडो नाम मात्र है सर। वैसा ही फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, लोग खफा हो गए, नहीं आ रहे हैं सर। जबकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्थान है, खास करके जहां कैमरा लगा दे कश्मीर में, वहां ही शूट हो जाता है, मगर वो इनकरेज अभी डिस्करेज है। अब आपकी सरकार, मैं अब समझ गया सवाल आपका। तो दूसरे सवाल का जवाब पहले,
मैंने बजट की तकरीर के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारी फिल्म शूटिंग पॉलिसी जो है उसको और मजबूत किया जाएगा। और जो मैं अपनी तकरीर में कह नहीं सका क्योंकि वक्त की कमी रहती है, आमतौर पे हमने देखा है कि बॉलीवुड में जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन एक पूरा फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा है साउथ इंडिया में जहां जम्मू कश्मीर को लेके ज्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि सदर्न फिल्म इंडस्ट्री जो है आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अगर जम्मू कश्मीर आके शूटिंग करना शुरू करे, इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो शूटिंग का यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन वहाँ फिर टूरिस्ट जो हैं, आज भी अगर आप देखें तो हमारे ज्यादातर टूरिस्ट गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य भारत से आते हैं। साउथ इंडिया से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर कम आते हैं। इन फिल्म शूटिंग से हमारी उम्मीद है कि साउथ इंडिया के टूरिस्ट जो हैं उनका रुख जम्मू कश्मीर की तरफ हम डाइवर्ट कर पाएंगे। एक ये। दूसरा, आपने ये कहा कि क्या हम इस बजट सेशन को आगे पीछे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस तजुर्बे के बाद अगले साल अगर मुझे बजट पेश करना होगा, मैं रोजों में पेश नहीं करूंगा ना, मैं बजट का सेशन आगे पीछे कर लूंगा। नहीं तो मैं स्पीकर साहब के सामने हाथ जोड़ के उनको कहूंगा कि 6:30 बजे के बाद सेशन रख के हम शाम को हाउस बिठा देंगे, लेकिन दिन को मैं रोजा रख के बजट इसके बाद पेश नहीं करूंगा। सर, myself Father Ishpal Gupta, CP News Live। सर, डेवलपमेंट के नाम पे एग्रीकल्चरल लैंड जो जा रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं आप? दूसरा, सुधीर जी के सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे के लिए आपने बात कही तो आपने एक फैसिलिटी भी आपको दी थी 2019 से लेके अभी तक एडमिनिस्ट्रेट रेट्स की बड़े महंगाई आसमान से चली गई है। प्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपसे मुलाकात भी की थी हमने, हमें सोचा था शायद बजट में तो चीज़ें आप सामने रखेंगे, तो उसी के बारे में आगे देखिए देखेंगे ना। बजट ही सारा कुछ नहीं है ना, बजट के बाद भी कुछ ऐलानात हो जाते हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। जहां तक एग्रीकल्चरल लैंड, हम भी जानते हैं और हम भी चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कम ही इस्तेमाल। लैंड यूज कन्वर्जन की जो पाबंदी है वो है, और इतना आसान नहीं है लैंड यूज कन्वर्जन करना। लेकिन अब आबादी भी बढ़ रही है, लोगों को मकान भी बनाने हैं, अपने बच्चों को भी बसाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को बैलेंस करना होगा। कम से कम एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसका यूज ट्रांसफर हो, ये हमारी हमेशा कोशिश रहेगी। सर, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। छोटा सा सवाल है सर, इस बार आपके बजट से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपका बजट बनाने का लोड थोड़ा कम कर दिया है। आपको इस बात की खुशी है या नहीं? पैसे बच गए, खुशी है। व्यक्तिगत रूप से मेरे पुलिस पे कंट्रोल नहीं है, उसका गम है। आ जाएगा तो अच्छी बात है, दोनों चीजें संभाल लेंगे। ऑनरेबल सीएम सर, मेरा नाम रितेश गुप्ता है, टीवी एक्सेलचर से। सर, मेरा सवाल स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी कई कदम उठा रही है और राज्य सरकार की तरफ से भी कई इसी दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम अपने जम्मू के मौलाना साहब स्टेडियम की बात करें, यहाँ पर रिंग को लेकर, जो यहाँ पर स्केटिंग को लेकर रिंग है, उसकी काफी समय से खस्ता हालत है। 3 जो एथलीट्स हैं वो जख्मी भी हुए हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरा दूसरा इसके साथ कंसर्निंग क्वेश्चन ये कि जो बेनिफिट्स हमारी नेबल स्टेट्स या अलग अलग राज्यों की सरकारें देती है, हमारे यहाँ के एथलीट्स को बेनिफिट नहीं मिल पाते। ये दोनों चीजें आपकी दुरुस्त हैं और इन दोनों चीजों को हम ठीक करेंगे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बजट में हमने प्रावधान किया है और जवान मंत्री बैठे हैं, काम करने की एक क्षमता है और करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, इस साल से ही इस पैसे का सही इस्तेमाल होगा और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा दिया, बेहतर किया जाएगा। दूसरी बात भी आपकी सही है, नेबरिंग स्टेट्स के मुकाबले हम अपने एथलीट्स को जो है रिवॉर्ड उस हिसाब से देते नहीं हैं।
इसको एनहांस करने की जरूरत है। मैंने पहले ही ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से कहा हुआ है, कोई एक प्रपोजल ना है, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुरमीत राज परिहार, उनका क्वेश्चन था 598 जो उन्होंने हुकूमत से पूछा था कि क्या रेगुलराइजेशन सर्विसेज एनवाईसी, रैबरे खेल और रैबरे ज़राअत और सीआईसी की हो सकती है? सरकार ने इसका जवाब दिया है कि वायलेशन है आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि रैबरे खेल का कैबिनेट डिसीजन नंबर 196/12/2017 का है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 141 है और आपके मैनिफेस्टो में भी था रैबरे खेल, लेकिन आज सरकार इनकार कर रही है कि रैबरे खेल के जो मुलाजमीन हैं हम इन्हें परमानेंट करेंगे या रेगुलराइजेशन पॉलिसी में लाएंगे, बिकॉज इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 16। एंड थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा कि आप इस पर जो जवाब देंगे वो हमारे जवाब हमने असेंबली में दिया हुआ है। जहाँ तक रैबरे खेल के जो उनको मिलता है उसको पिछले साल ही डबल किया गया था। अगर इसमें आगे कुछ जाके करना होगा, डिपार्टमेंट की तरफ से जब प्रपोजल आएगा उस पर हम गौर कर लेंगे। सर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इसमें जो लिखा हुआ है कि रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज, तो क्या सर इनके लिए तो ऑलरेडी सर्विस पॉलिसी बनी हुई है, इनका डिसीजन भी जो है वो कैबिनेट नंबर 196 है। आप असेंबली के सवाल का यहाँ सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं सर। ये असेंबली तब हमने जो बात कहनी थी वो कह दी। अब इससे आगे जो डिपार्टमेंट को करना होगा, डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी जो है वो तय कर लेगी। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वाकिफ खानी में एएनएस कश्मीर कमीशन। सर, एक आरटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। लेकिन इस बजट सेशन में उन नौजवानों के लिए क्या क्या खासकर जो है पढ़े लिखे नौजवान तो जम्मू कश्मीर की बात करें। दूसरा क्वेश्चन ये, आपके वजीर आजम बनने के कुछ ही दिन के बाद वजीर आजम में बना ही नहीं, माफी चाहता हूँ, नहीं कोई नहीं, इसमें माफी मांगने की बात ही नहीं है ना। वजीर आला बनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर एक मैच हुआ है, तो जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ आईपीएल के मैचेस हों। एक स्टेडियम कठुआ साइड में प्रपोज किया गया है और बीसीसीआई से बात चल रही है कि ठीक उसी तरह का स्टेडियम कश्मीर में भी बने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ताकि इस तरह के मैचेस जो हैं एक अच्छे पिच और एक अच्छे स्टेडियम में हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ, ये हमारी कोशिश होगी। और जो पहला सवाल आपका था एम्प्लॉयमेंट को लेके, सारा बजट ही उस पर था। जो डेवलपमेंट की हमने बात की, जो स्टार्टअप्स के लिए हमने बात की, जो आई डोंट हैव a categorical answer to that. I can't put it in years, 1 year, 2 years, 5 years, except that the problem is endemic. It's not a recent problem. In fact, if anything, the scale of the problem has government of India for the sort of funding that we rely on today. Will we get there? Yes, but it's not going to be easy. Obviously, to get Jammu and Kashmir to that point will take difficult decisions, and it will not be painless. But I believe that it is in the interest of Jammu and Kashmir and in the interest of Jammu and Kashmir's self-respect to be in a position where we are not dependent. सर, पंकज शर्मा सर, न्यूज़ 24 से। सर, जो आज बजट आपने पेश किया, आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं जो वादे आपने मैनिफेस्टो में किए थे उससे एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। ना लोगों को बिजली दी, ना बेरोजगारों को रोजगार दिया, ना डेली वेजेस को भी दिया। ये आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने कौन से वादे हैं जो पूरे किए। सर, दूसरा सवाल ये है कि जब ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी कश्मीर घाटी तक, यहाँ के लोगों की चिंता ये है कि उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। क्या कोई रोड मैप है कि जम्मू डिवीजन में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग यहाँ पर आए, वहाँ पे अगर जाए तो रोजगार पैसे ना पड़े? अब जम्मू के हवाले से मैंने पहले भी बात की, दोबारा दोहराना इसका कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू में टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिले, उसके लिए कई इकदाम पहले से उठाए गए हैं, आगे भी कुछ जो पाइपलाइन में है उनको पूरे किए जाएंगे। जहां तक बजट के वादे हैं हम कर रहे हैं पूरे ना, बजट के मैनिफेस्टो के वादे एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है ना, लोगों ने हमें 5 हफ्ते की हुकूमत नहीं दी, 5 महीने की हुकूमत नहीं दी, 5 साल की हुकूमत दी। अब रोज आप मुझसे पूछोगे ना कौन सा वादा पूरा किया, कौन सा वादा पूरा किया। आप 5 साल की बात पूछे ना, जब 5 साल उस दिन बैठ यहाँ 5 साल हो गए, बताइए क्या किया, फिर मैं बता दूंगा।
अब रोज थोड़ी ना मुझे ये है ना, ये कोई चेकलिस्ट तो नहीं है ना कि आज मैंने ये वादा पूरा किया, ये पूरा किया, ये पूरा किया। 5 साल के बाद मैं अपना चेकलिस्ट आपके सामने बता दूंगा और आपको कहूंगा ना ये मेरे वादे थे, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। Good evening, Namaskar. I'm Rajesh Gupta, editor News Till Date. I have a small question. How does the budget address the rising cost of living and inflation, particularly for low-income families? By attempting to put more money in their hands and more money in their pockets. We have tried to provide relief to the weakest sections of society. While we can't counter inflation, Jammu and Kashmir on its own can't counter inflation that is prevalent in the entire country. But what we have tried to do is to address, to some extent, the budgetary concerns of the weakest sections of society. सर, आज मुझे लगता है कि जम्मू की वो महिलाएं जो रोज बाहर निकलती है घरों की, और वो लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, प्राइवेट जॉब में, सरकारी जॉब करती, बहुत खुश हुई आपके बजट में जब आपने कहा कि फ्री बस राइड होगी। लेकिन फिर आपको याद होगा जब आप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, सिर्फ बात आप किश्तवाड़ पहुंचे थे जहाँ पर कई लोगों के घर जले थे। उसी किश्तवाड़ के इलाके में जब बर्फबारी होती है तो आज भी गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लाया जाता है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि आधे रास्ते में महिलाएं मर जाती है रोड कनेक्टिविटी की वजह से। ये भी एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का है। दूसरा, मेरे एक साथी ने सवाल किया था कि वैष्णो देवी में के यात्री आते हैं, कश्मीर में के लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन राजौरी जो उसके साथ किश्तवाड़ भी एक इलाका है जहाँ पर पाडर मचेल मंदिर है, तो जहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल लोग जाते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा जाते हैं वैसे वहाँ भी जाते हैं। वहाँ की डेवलपमेंट और बुढ़ा अमरनाथ जो इतना बड़ा मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे भी डेवलपमेंट, और जो थाना मंडी के पास जो ज़ियारत है बहुत बड़ी जहाँ पर आप खुद भी जाते रहे हैं, वहाँ पे भी लोग जो देश भर से लोग आए। क्या ऐसा आपके मन में है कि आपने वहाँ पर डेवलपमेंट कर दिया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि गर्भवती महिलाएं, अब भारत आजाद हो गए कई साल हो गए सर, लेकिन महिलाएं आज की वोट नहीं होने की वजह से प्रेगनेंसी में लेबर पेन में मर जाती हैं। अब हम जानते हैं, मैं मानता हूँ कि रोड कनेक्टिविटी पूरी नहीं हुई है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रोड कनेक्टिविटी के हवाले से आज फिर बजट में जिक्र हुआ, उसके लिए पैसों का इंतजाम किया गया है, चाहे वो ब्लैक टॉपिंग के लिहाज से हो। हमने 4000 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग करने का इस अगले वाले साल में जो है वादा किया। नए सड़कों को जो है हाथ में लिया जाएगा। एक नंबर्स तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ब्रिजेस और रोड्स के हवाले से हमने कुछ इकदाम उठाने पे जो है बजट के हवाले से लोगों से वादा किया है, वो हम कर लेंगे। और ये जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादातर काम उन इलाकों में होंगे जो फिलहाल डिस्कनेक्टेड, जिनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तो वो काम जरूर कर लेंगे। जहाँ तक आपने जम्मू के टूरिज्म के हवाले से बात की, आपने बिल्कुल उन इलाकों की बात की, उन जगहों की बात की जिनको टूरिज्म के नक्शे पर लाना ज़रूरी है, और उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम ये कुछ सर्किट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आ जाते हैं, उन्हें अब इन सर्किट्स के बारे में पता चले तो हम इनको डाइवर्ट कर पाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कमी इस बात की है कि जानकारी उनके पास है नहीं, इन जगहों के बारे में ये जानते नहीं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अग्रेसिवली हम इन जगहों की जानकारी जो है यात्रियों तक पहुंचाएं, ताकि जब वो अपने प्रोग्राम या अपने प्लान बनाएं, वो सिर्फ 2 दिन का प्रोग्राम ना बनाएं कि हम जी सीधा कटरा आए, ऊपर गए, दर्शन किए, वापस आए और निकल गए। फिर वो जब आते हैं तो 5 दिन 7 दिन का एक पूरा प्रोग्राम बना के, सर्किट बना के उन जगहों की तरफ जाएं जिन जगहों का आपने जिक्र किया। आइए गुड इवनिंग, सीएम साहब अनिल शर्मा IANS से। मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा है। सवाल ये है कि आज जो आपने बजट पेश कराया है, ऑपोजिशन का ये कह रहे हैं कि पीएम के जो विजन है उसे एंडोर्स किया गया है। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? अब अगर पीएम साहब जम्मू कश्मीर को एक डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते हैं, तो क्या मैं ये कहूं कि ना ये नहीं होना चाहिए? हम में से कोई ऐसा है जो ये कहेगा ना जम्मू कश्मीर डेवलप नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएम साहब ने कहा? अगर
मरकज की हुकूमत के इरादे जम्मू कश्मीर के लिए सही हों तो ठीक है ना, हम भी उसी दिशा में चलेंगे। लेकिन ये बजट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बजट। इस बजट को बनाने के लिए कितनों से मशवरे हुए, एक एक एमएलए, पहली मर्तबा इस मुल्क में ऑनरेबल एमएलएज को बजट फॉर्मेशन के कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया गया, उनसे उनकी राय मांगी गई, उनके सुझाव मांगे गए। इससे पहले 5-6 साल जो बजट पेश हुए पार्लियामेंट में हुए, आपको उस वक्त तो पता ही नहीं होता था कि बजट में ऐलान क्या हुआ। मुझे खुद पिछले 5 साल का 6 साल का याद ही नहीं है कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए क्या ऐलान होता था। आज जम्मू कश्मीर के बजट पे आप लोग तबसरा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हो। पिछले 6 साल बजट को लेकर सवाल कहाँ हुए? अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बजट होता तो यहाँ सवाल जवाब होता ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो यहाँ आके आपके सवालों का जवाब नहीं देते, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा यहाँ आके आपके सवालों का जवाब नहीं देते। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत का बजट है। अब अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं और हम जो जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिहाज से कोई हमारी पटरी मिल जाए तो अच्छी बात है ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फायदा। उस तरफ नीचे 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 मिडल। Sir, Amir Tandre, ETV Bharat. Sir, you had talked about harnessing the hydroelectric potential and adding more than 7,000 megawatt. But Chinaveli, where all the potential lies, that hasn't got the share of development which it deserves. Nobody is talking about train to Chinaveli. The existing highways in Chambal, new highway from Chinaveli to Kishtwar is still a two-lane road. And what options are with you to get those power projects back which center has taken in its control? Connectivity along Chenab Valley is something that needs improvement. It is work in progress. Already improvement on the highway between Chenani and Kishtwar is going on. Work on some tunnels, road widening, that is an ongoing process. Now, you can't expect at this point in time where right now even between Jammu and Srinagar you don't have a 4-lane highway fully. So to expect that I'll be able to announce 4-lane highway between Chenani and Kishtwar is perhaps expecting too much. But if you even have a wide enough and a good quality road at this point in time, that's enough. Now, yes, it's a fact that most of the capacity that we have on hydroelectricity is on Chenab River, but we will endeavor to exploit that to its fullest. We listed out some projects that are in the pipeline. I consider it a matter of my own good fortune that these projects were conceptualized and actual work on these started when I was previously Chief Minister. The Chenab Valley Power Development Corporation was set up when I was previously CM. Now, these other projects that we have conceptualized, I hope that during this term of my government, we will start the work on them and complete them at the earliest. Now, on the third thing, what was your third part? On getting the projects back. That's part of ongoing discussions with Delhi, but we haven't had much success. We didn't have much success with Dr. Manmohan Singh's government. They are part of previous government's conversations with Delhi. They're part of our conversations with Delhi. Let's see where we get. But it's not getting the share like other areas. Which area? कोई नहीं ना, आपके एमएलए हजरात से बात करके कर लेंगे जितना कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं रजत बोल रहा हूँ जी। सर, इस समय अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर या किसी भी जगह पर आम आदमी के ऊपर सबसे बड़ा बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर में अगर मैं खास बात करूँ तो 3 चीजों का है। एक तो गाड़ियों की जो EMI टोकन मनी जो इस समय इतनी ज्यादा टोकन टैक्स तो लग रहा है, जो रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और तीसरी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तो फीस है। क्या रिकंसिडर किया जा रहा है कि इनको किस तरीके से कम कर पाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सर इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है वो काफी ज्यादा आ रही है, बिल्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो उसकी रिकंसिडरेशन, क्योंकि अभी हमें अगर बात करें तो काफी ज्यादा बिल इसको लेकर आ रहा है। जी सर, किस चीज के बिल्स? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। और दूसरा मैंने कहा कि इसलिए, अच्छा चलिए मैं तीसरा हिस्सा पहले ले लूंगा, इसलिए तो हम स्मार्ट मीटरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर में जितना आप बिजली इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको भरना होगा।
तो इसलिए मैं बार बार अपने बजट की स्पीच में, एलजी साहब के खुतबे में, मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए मैं कहता हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ स्मार्ट मीटर लगेंगे वहाँ बिजली का सही इस्तेमाल होगा। फिर आप उतनी ही बिजली इस्तेमाल करोगे जितना बिल भरने की आपकी ताकत होगी। और जो सबसे गरीब तबका के लोग हैं उनकी हुकूमत मदद करेगी, जिस तरह हमने बजट में ऐलान किया है। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से आपने बात की, वो तो फी फिक्सेशन कमेटी है जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है वो तय करती है। वो अपना काम करते हैं, उसमें रिटायर्ड जज चेयरमैन है, उसमें गवर्नमेंट का दखल जो है कम रहता है। वो फीस तय करते हैं और सिलसिला वहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरा आपने रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की। इज रजिस्ट्रेशन मोर एक्सपेंसिव? सेम एज अदर। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हाँ, हमारा 9% है जो बाकी रियासतों में है। अब सिर्फ ये है, एक जो बाकी रियासतों में बीच में मैंने सुना कि जो वो करते हैं, वो बीच में हर 6 महीने या साल में एक बार वो मेला अनाउंस करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि इस महीने के लिए अगर आप गाड़ी इस महीने में खरीद लो तो हम रजिस्ट्रेशन में आपको कंसेशन देंगे। उससे क्या होता है कि फटाफट लोग आके उस महीने गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी के जो डीलर्स हैं उनकी सेल बढ़ जाती है, हमारा जीएसटी की कमाई भी बढ़ जाती है और रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा लोगों को कंसेशन मिलता है। फिलहाल हमने इसका जो है कोई पॉलिसी बनाया नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं सतीश से बात करके देख लूंगा अगर इस साल हम इस तरह का कोई कदम उठा सकेंगे। नेक्स्ट सर, गुड इवनिंग, दिस इज विवेक सूरी फ्रॉम जम्मू कश्मीर की ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें, खासकर क्योंकि जम्मू कश्मीर युवा आबादी का बेहतर हिस्सा यहाँ पर हुआ है और हमारा पड़ोसी मुल्क उसका हमेशा से ही प्रयास रहा है कि इसको खोखला किया जा सके। ड्रग्स एक बहुत बड़ी वबा है और लगातार ड्रग्स की यहाँ पर कंसाइनमेंट करनी जाती है। ऐसे में इस बजट के हवाले से क्या आपके प्रयास रहेंगे कि ना केवल रिहैब सेंटर्स बनाए जाए, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों की अगर बात करें तो वहाँ पर डेडिकेटेड काउंसलिंग सेंटर्स, खाली नाम के लिए नहीं, बल्कि जो इन यूथ को एड्रेस कर पाए इनकी परेशानी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स हैं इट्स अ बिग नो, क्योंकि हमारी क्लोज सोसाइटी है, टैबू है, खुलकर हम उस पर बात नहीं करते। अगर जनरेशन नेक्स्ट को बचाना है तो कहीं ना कहीं इकदाम। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त, ड्रग फ्री बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी हर कोशिश होनी चाहिए कि इसमें हम कामयाबी हासिल करें। इसमें अच्छी बात यह है कि मरकज की तरफ से भी कई इकदाम लिए जा रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर साहब ने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें खासकर एजेंडा यही था कि ड्रग मेनेस को जो है किस तरह टैकल किया जा सकता है। तो एक तो बड़ी नज़दीकी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ जो है हम मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक कोऑर्डिनेशन रहे हमारे और उनके दरमियान और हमारे और जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, खासकर पंजाब और हिमाचल। तीसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि ड्रग रिहैब की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही माने में बने। इसके हवाले से कई बार हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा सकीना ने असेंबली के अंदर और कई जगहों पे इस पे बात की है। जो रिहैबिलिटेशन और ये ड्रग वो सेंटर जो हैं उनको एक्सपैंड करने की, उनकी तादाद बढ़ाने की और सेंटर्स में साइकियाट्रिक काउंसलिंग वगैरह इस चीज़ का इंतजाम हो, इन सब चीज़ों के लिए जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री जो है काम कर रही है। इसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1-1.5 साल पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हमने वादा कहा, वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, उस डॉक्यूमेंट को हेल्थ डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट किया है और उसको एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट बना के उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर को वाकई ये ड्रग्स मैनेज से जो हम बचा पाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आमिर स्ट्रेट लाइन से। सर, दो तीन इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो डेलीवेजर्स के रिगार्डिंग सर, पीएचई डिपार्टमेंट में तो डेलीवेजर्स पीडीडी डिपार्टमेंट ऑफ डेली वेजेस के हवाले से मैंने बात की, मैं दोबारा तो कहूँगा नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सारे मैंने सबकी बात की ना, मैंने पहले ही कहा कि इस पे हम रिगार्डिंग एसआरओ बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हुई सर। पीएचई डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो डेलीवेजर्स हैं उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई और अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला है, केवल कॉम्पनसेशन नहीं मिला, उन लोगों को एसआरओ का कोई भी फायदा नहीं मिला। उनके केसेस तैयार हो रहे हैं,
उनके लिए केस कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने रेगुलराइजेशन के हवाले से आप सवाल कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है, पहले हम उनका नंबर तय करेंगे, उसके बाद उनके लिए पॉलिसी बहुत सारे बनाएंगे। ऐसे डेलीवेटर्स हैं जो बार बार कह रहे हैं कि SRO बनना चाहिए सर, उनके बच्चों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज एक ही सवाल तक पीछे पीछे नेक्स्ट। I welcome everybody here. मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि ट्रैफिक बहुत है जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, और बहुत सी गाड़ियाँ रोड साइड पर लगा देते हैं। ट्रैफिक कंजेक्शन हर जगह है, बड़ा मुश्किल है। और मैं चाहता हूँ ये तो आप सेंटर से चेकअप करें कि इस वर्ष पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी के मेट्रो दोनों सिटीज में, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी गाड़ियाँ, वो आप वायदा करें कि आप टेकअप करेंगे। ना मैं टेकअप तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जवाब क्या आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब शहरों में मेट्रो बनाने पे रोक लगाया हुआ, क्योंकि जिन शहरों में फिलहाल मेट्रो बना है उनमें भी कई सारे ऐसे शहर हैं जिनमें मेट्रो वायबल ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर में अब हम आज ये उम्मीद करें कि श्रीनगर और जम्मू में हम मेट्रो लगाएंगे और वो वायबल होगा, नहीं होगा। हमें मेट्रो को छोड़ के कुछ ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिससे कि ट्रैफिक कंजेशन हम कम कर पाएंगे। लेकिन मेट्रो हमारा इलाज नहीं है। हमारा इलाज शायद इसमें है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो है उसको बेहतर करें, और शायद उसमें हमारी हमने एक पहला कदम आज उठाया है, जो कि हमने लेडीज के लिए पब्लिक बसेज में जो है फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है। शायद उससे थोड़ा सा अगर ट्रांसपोर्ट में कमी, ट्रैफिक में कमी आएगी तो ठीक है ना, और कदम उठाएंगे। मसूद हुसैन, अब जितना मैं बोला हूँ उससे कई गुना कम आपने बोला होगा ना। व्हाट इज योर एक्सक्यूज? I just want to say a couple of things. Number one is that since you are looking into this tourism from 7% to 18%, how willing are you and to what extent are you willing to pay for that? Because I'm not being informed because it can cost. No, sorry, come again now. To what extent am I willing to pay the cost of what? Not to pushing tourism to be 7% of GDP, 14% of GDP. It has cost. It may have cost. What sort of cost? Because we are because pressure and gold. So what No, kind of see, what kind of business are we doing? let me. There are two types of tourism. One is mass tourism. One is high-end tourism. I believe that Jammu and Kashmir over time has to move to high-end tourism. That we need to focus less on increasing the number of tourists and focus more on increasing the quality of tourists. That is how we will increase the amount of money that is contributed. So we are not looking to increase the number of tourists coming. Number will gradually increase. We are looking to add more high-spending tourists to Jammu and Kashmir, for which appropriate infrastructure and new resorts will have to be created both in Jammu and in Kashmir, and that is what we endeavor to do. Too small क्योंकि ये जो हिसाब किताब होता है बजट का, गोशवारा होता है, उसमें ऑलरेडी सिस्टम होना है। तो when we are talking of national expenditure, we essentially indicate that this particular amount is going for the development. But the larger reality is that it has part of debt, income, part of interest payment, that is occupied. So over the years, what has happened is we believe that where 30% of public spending going to national expenditure, we actually are going about 30% less. That is overall as I see. Number one part. Number second part is in the last few years, we have seen that domestic revenue, the income that we were expecting, haven't come the way they should have.
as a result of which we were highly reliant on debt. And if you see the graph of debt for the last 5 years, they have increased, not decreased. So what is the magic wand that you expect to use this time, that the debt will remain at a manageable level in comparison to last year? So our capital expenditure is increasing. Our repayments are decreasing, which means that more money is actually available for generating or developing capital assets. No finance minister has a magic wand. Madam Nirmala Sitharaman Sahiba doesn't have one in Delhi, and no finance minister in any state or union territory in India has a magic wand. We make do with what we have. And that's why in an answer to an earlier question, I said I can always make do with more, but I'll manage with what I have. So the idea, look, we are extremely conscious of our responsibility not to load debt on our future generations. J&K anyway has a very high debt level. So none of the initiatives that we have announced today to widen our social blanket or our social net are debt finance. We are not looking to add more debt to finance any of the initiatives that we have taken. Whatever debt we have to take in the ordinary course of government, we will. But our repayments have also gone up quite significantly. In fact, our outstanding, a lot of our sort of off-budget borrowings that we have done, we have been able to more or less clean up those books and write those off. So we have actually cleaned up our finances to ensure that we don't burden future generations with a greater debt than is fair. Thank you. But that's an ongoing conversation that I have with the finance secretary, because as and when we have additional money available that we need to deploy, like this year, we have some savings this year because, like it or not, we had 2 elections. Those elections had election codes. Election codes meant that work got hit. Therefore, some savings were there. We've used those savings to retire high-cost debt and take debt at a lower interest rate. Please keep your questions short so that we can comment. I'll take 2 more questions because it's almost time to. Sir, one important question से data है. आपने तो अभी दिया सर. That's why I'm asking, sir. I had missed one important question. आप सर रेगुलर आप दूसरों को दे दीजिए ना. आप दूसरों को दे दीजिए. आपको मौका मिल गया था. सर बाबू शर्मा द पब्लिश मेरा न्यूज़पेपर से. सर मेरा सवाल जम्मू टूरिज्म को लेकर, और आज आपके बजट में भी जम्मू को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की बातें कही गई हैं. हर साल श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए करोड़ों की संख्या में लोग माथा टेकने के लिए आते हैं. उसके बाद वो पत्नीटाप, सनासर या फिर नथाटाप वहां पर जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिसकी वो इच्छा करते हैं. नाइट लाइफ नहीं है, पानी नहीं है, रात को बिजली बंद हो जाती है. लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जो जम्मू में ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, कुदरत ने जम्मू कश्मीर को सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन लगता नहीं कि जम्मू में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है. क्योंकि जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं उनकी बड़ी सारी कंप्लेंट्स वहां पर होती हैं कि उन्हें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पानी नहीं है. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर बड़ी दुखी से कहना पड़ रहा है कि जब हम टूरिस्ट से पूछते हैं कि जम्मू की लैंग्वेज कौन सी है, तो वो सर कहते हैं वो कश्मीरी. तो डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सर आपकी सरकार क्या करने जा रही है? मैंने आज तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि जम्मू की लैंग्वेज कश्मीरी है. डोगरा कल्चर तो पूरी दुनिया में जाना माना जाता है. तो अब पता नहीं आप किससे मिले जो मतलब इतना बेखबर है. मैं तो फिलहाल अभी ऐसे किसी से मिला नहीं हूँ, लेकिन चलिए अगर और मतलब इस तरह के लोगों की जो है नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है वो हम कर लेंगे. मैंने खुद बजट के दौरान असेंबली में भी और मुख्तलिफ जो मीटिंगें हुई उसमें कहा है कि जम्मू के टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है. हकीकत ये है कि माता वैष्णो देवी के 1 करोड़ से ज्यादा यात्री जो हैं जो आते हैं उनमें से बहुत कम ना होने के बराबर कहीं डाइवर्ट होते हैं. आपने पत्नी टॉप, नथा टॉप इन इलाकों की बात की. कितने माता वैष्णो देवी के यात्री यहाँ जाते हैं? ना होने के बराबर.
पत्नी टॉप में अगर टूरिस्ट जाते हैं तो ज्यादातर जम्मू के ही लोकल जाते हैं यहाँ गर्मी से बचने के लिए। अब इसलिए हमारी कोशिश है कि नए डेस्टिनेशन यहाँ पे डेवलप हो। मैं फिर वो स्प्रेड के हवाले से बात करता हूँ। हमारी कोशिश है कि जम्मू में 4-5 नए डेस्टिनेशन ठीक ठाक यहाँ पे एस्टैब्लिश हों, ताकि हम माता वैष्णो देवी, ये ना बना बनाया आपके लिए मार्केट है। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए हमें बाकी मुल्क में घूमना पड़ता है। जम्मू के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको सिर्फ माता वैष्णो देवी के यात्री को टैप करना है। 1 करोड़ यात्री में से अगर हम 15% ही टैप कर पाए, वो 15 लाख है। अगर वो 15 लाख, जिस तरह मैं इनसे कह रहा था, जिस तरह हम गिनते हैं, अगर 15 लाख 4 डेस्टिनेशंस में गए, देख लीजिए कितना, दैट बिकम 60 लाख विजिट्स। तो हमारी यही कोशिश है कि माता वैष्णो देवी के यात्री जो हैं, उन्हें अगर हम 10, 15, 20% यहाँ दाएं बाएं नए डेस्टिनेशन में डाइवर्ट कर पाए, जम्मू की टूरिज्म इकोनॉमी जो है वो पूरी बदल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन। सर नमस्कार, संजय गुरु का फाइनेंशियल फ्लोर। सर अगर हम जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनका फीस स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा है, और जो आम घरों के जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में जा सके। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में हालांकि हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता। और अगर हम फॉर्मल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे टीचर्स की काफ़ी कमी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपने एक ही ब्रश से तमाम गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को जो है यहाँ पे रद्द कर दिया। ऐसा नहीं है ना कि हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स बिल्कुल बेकार। अब जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं है, उस तरह हर कोई बराबर नहीं है। सारे प्राइवेट स्कूल तूफान तो नहीं है। अगर सारे प्राइवेट स्कूल तूफान होते तो सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है वो आज पता नहीं कहाँ होते। जिस तरह प्राइवेट स्कूल में भी कुछ प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, कुछ मतलब फजूल के हैं, इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल में कुछ अच्छे गवर्नमेंट स्कूल हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर करने की जरूरत है, और इसलिए मैंने बजट के हवाले से काफी जोर एजुकेशन पे दिया। हमने जो नया इनिशिएटिव K-12 स्कूल्स की बात की, मकसद यही है कि हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करें। हमने स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से बात की, हमने आर्टिफिशियल AI लर्निंग के हवाले से बात की। मकसद यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो, और हमारे बच्चे जो हैं बाहर के, मतलब जो बाकी मुल्क के बच्चों के साथ जो है मुकाबला कर पाएं। एक मतलब कोचिंग सेंटर